अमृत जल छाया पूरन साध कर आया। अमृत जल छाया पूरन साध कर आया। अमृत जल छाया पूरन साध कर आया। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी जी साहे। गौड़ी महला तीसरा। एक ओंकार सतगुरु। इस जुग का धर्म पढ़ो तम पाई। पूरे गुर सब सोची पाई। इस जग का धर्म पढ़ो तम पाई। पूरे गुर सब सोजी पाई। ये बाणी महाराज तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी की है। गुरु साहब जी युग के मुताबिक फरमा रहे हैं कि ऐस युग का धर्म पढ़ो तुम पाए। हर काम जिहड़ा ये मौसम के मुताबिक हुंदा है। जदों असीं मौसम के मुताबिक काम ना करांगे तो उहदे चों सानूं फायदा कोई नहीं हुंदा। ऐस युग दे विच साडी 100 साल उम्र काल भगवान ने रखी है। पिछले युगां दी उम्रां जिहड़ियां सी लखां वरे सन। अगर असी अज वो पिछले काम करिए इन्नी साड़ी उम्र नहीं है। 100 साल दे विच की कर सकता है बंदा। महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी ने अपनी पहली अवस्था दे विच पिछले कर्म कीते। 22 बार उन्होंने गंगा का इशनान किया और जगमोशे भी करते रहे, लेकिन बनया कुछ नहीं। बाणे च लिखिया कर्म होवे तां कोई पाइए। जे कर्म करे तो तां कुछ मिलता है। इसनों उस चीज़ नूं पाना जिहड़ा वो कर्म दे नाल। जिस तरह कोई लड़का पढ़ाई करता है तो कदी उसनूं नौकरी मिल जाती है, पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। जिमीदार जमीन नूं वाहुंदा है तो समा जदों आउंदा है तो फिर उसका उन्होंने फायदा मिलता है। इस तरह सानू पहला कर्म करना पैंदा है, फिर असी उस दौलत नूं पा सकते हैं। महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी ने पहली अवस्था दे विच कर्म कांड किए, लोगों के नाल मिले चुले, लेकिन बनया कुछ नहीं। उन्होंने घर दे विच लड़की सी, गुरु साहब की विआही भतीजा नूं उन्हां दी लगदी सी, जिसनों बीबी अमरो करके बुलाउंदे है। वो लड़की बड़ी प्रेमन सी, भजन सिमरन करती सी। सुबह सुबह उठ के उसने शब्द पढ़ने, बड़ी खुशी दे नाल, लहर दे नाल पढ़ने। ये शब्द पढ़िया, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हज़ार, एती चांदन होंदियां गुरबिन कोर हुंदा। जदों गुरु साहब ने सुनिया तो लड़की नूं कहा, बेटी तू एक की बाणी पढ़ रही है? लड़की ने अपने पिता का इशारा दिता। कहने लगे तेरे पिता के पास असी कई बार गए हैं,
ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਗਏ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਗਏ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਚੱਲ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਹੁਰੇ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਹੁਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਚੱਲ। ਲੜਕੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਪਰ ਮਨ ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਰੱਬੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਦਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਪਰ ਦਈਏ ਕਿਹਨੂੰ? ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਣ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਦਸੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੋਡਾ ਸਾਬਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। 6 ਮੀਲ ਜਾਣਾ और 6 ਮੀਲ ਆਣਾ, 12 ਮੀਲ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਨਾ ਬਣੇਗਾ, ਕਰਮ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਣੇਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। 12 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੱਜਤ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਐਸ ਯੁੱਗ ਕਾ ਧਰਮ ਪੜੋ ਭਾਈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਐਸ ਯੁੱਗ ਕਾ ਧਰਮ ਪੜੋ ਭਾਈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਗ ਮੋਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਸ। ਪੂਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਤ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਤ ਸਤ ਹੈ, ਸੀਲ ਸੰਦੋਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਢੋਇਆ, 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵਕਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗਾ, ਬੇਵਕਤ ਦਾ ਕੰਮ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੇਮੌਸਮੇ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲਵਾਂਗੇ? ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਰਚੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਂਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਈ ਹੈ, ਕਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਵਕਤ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ। ਪਰ ਜਦ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ। 12 ਸਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੀਨ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ, ਅਮਰੂ ਨਥਾਇਆ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵਕਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਵਕਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਕਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਤਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਵਕਤ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ, ਵਕਤ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤੀ। ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੀ ਹਾਕਮ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਚਲੋ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਲੁਕਮਾਨ ਹਕੀਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਤ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਤਪ, ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਉਚਾਰ, ਕਲ ਯੁਗ ਮੇਂ ਨਾਮ ਹਜ਼ਾਰ। ਹਰ ਯੁੱਗ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਸਤਿਯੁਗ ਆਇਆ, ਕਲਯੁਗ ਆਇਆ,
ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਮੋਟੇ ਬੰਧਨ ਜਗਤ ਕੇ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਸੇ ਕਾਟ। ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬੰਧਨ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਬਣਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਧਨ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। मोटे बंधन जगत के गुर भगति से काट, चीने बंधन चित्त के कटे नाम परता। जिन्हां बंधन का कोई पता नहीं, वो नाम दे नाल कटन। नाम का भी देह नहीं और साढ़े कर्मां का भी कोई देह नहीं है, किसी चीज़ का वजूद नहीं है। इस वास्ते गुरु साहब जी युग के मुताबिक सानू समझा रहे हैं कि भाई युग का फायदा लाओ, मौके का फायदा लाओ। अगर तुसी मौके का काम ना करोगे, जिंदगी एवें गुजर जाएगी। ये मनुष्य जन्म सानू बड़ा अमोलक जन्म मिलिया, बड़े भागां दे नाल मिलिया है। बाणी च गुरु साहब जी फरमाउंदे आ, पौड़ी छुड़ के फिर हाथ नहीं आवे, आला जन्म गवाया। ऐ इंसान ये मनुष्य जन्म की पौड़ी, पौड़ियाँ चढ़दा चढ़दा तू आया, ये डायरैक्ट तू बंदा नहीं बने। स्वामी जी महाराज भी फरमाउंदे है, मिली नर दे ये तुमको बनाओ काज कुछ अपना, जे तन दुर्लभ तुमने पाया कोट जन्म जे पड़का खाया। कि जेड़ा शरीर पाया है तू डायरैक्ट बंदा नहीं बनया, पिछे करोड़ों जन्म तू पड़के खांदा है। तू उधर ख्याल रख। ये मनुष्य जन्म तेनू बड़ा अच्छा जन्म मिलया है, बड़ा श्रेष्ठ जन्म मिलया है। हुण तू कुछ अपना काम कर ले। हर चीज़ की गारंटी है, कोई भी दुनिया दे विच चीज़ कोई बनाउंदा उसकी गारंटी है कुछ ना कुछ। असी कदी ये नहीं सोचिया कि साड़ी गारंटी की, बंदे की की गारंटी है, बंदे की की लिखत पढ़त है, की पता है कद असी जाना कद रहना है। एक मुसलमान फकीर ने फरमाया, आदम कि आदमी जिहड़ा है उसनू किस नाल आदमी है, किस चीज़ के नाल आदमी है। जे दम आया अंदर तो आदमी है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जिन्हों असी साह कहने वो दम कहते। आ दम ऐ इंसान, जे दम आया तेरे अंदर साह आ रहा है तो तू बंदा है, अगर नहीं आया तो कुछ भी नहीं है। कितना कोई फर्क लग। सहजो भाई एक स्त्री हुई है, उसने अपनी बाणी च फरमाया है, ऐ सहजो ए तनक सुहाग पर कहें गदामे शीस। एक तिनका जिन्ना चिर तोड़दियां लगता है, ये तो भी बंदे का बिल्कुल कुछ भी काम नहीं है, तो भी बहुत जल्दी है। इन्नी मनियाद भी इस बंदे की नहीं है। तू किस चीज़ का मान कर दी है। सारे संत महापुरुष जितने भी दुनिया च आउंदे है, वो सानू कहते हैं, भाई है मनुष्य जन्म जो तैनू मिलिया बड़ा श्रेष्ठ जन्म मिलिया है, तू अपना काम कर ले। असी पराए काम कर रहे हैं, पराए कामां दा सानू कोई फायदा नहीं। अपना काम साडा भजन सिमरन साध संगत की सेवा और सत्संग। ये दूसरे काम जो असी करने ही करने हैं, क्योंकि ना करांगे तो असी इन्हां दी खुराक कित्थों देंगे। साडा शरीर जिहड़ा तत्तां दा बनिया है, अग हवा मिट्टी ते पानी। इस शरीर नूं सानू इन्हां तत्तां नूं खुराक देनी है,
कोई नौकरी करता है, कोई दुकानदारी करता है, कोई और बिजनेस करता है, कोई खेतीबाड़ी करता है। किस वास्ते कि यह जिहड़े तत्त साडे शरीर है इस नूं खुराक देनी। पानी की खुराक पानी वक्त के मुताबक, अग की खुराक अग, और मिट्टी की खुराक मिट्टी। जो असीं खाना खाने हैं रोज़ दे रोज़ असीं खाना खाने, वो खुराक देनी है। इस तरह ये शरीर दे विच जिहड़े तत्त ने जिन्हां दे नाल साडा शरीर कायम रहना है, इन्हां नूं असीं खुराक देनी देनी। अगर काम नहीं करांगे तो खुराक कित्थों देंगे। और इस दे साथ साडी साध संगत की सेवा और भजन सिमरन सत्संग, जिहदे नाल साडी कल्याण होनी। ये रस्ता अलग है और रस्ता अलग है। वो एक सिर्फ असी जो काम कर रहे हैं, चाहे कोई करोड़ों का कर रहा, अरबां का कर रहा है, वो सिर्फ इन्हां तत्तां दा खुराक। उहदे नाल असी अपने देश नहीं जा सकते, अपने मालिक के पास नहीं जा सकते। अपने मालिक के पास अपनी कल्याण कराउण वास्ते सानू इन्हां चीज़ां की लोड़ है, भजन सिमरन की और साध संगत की सेवा। साध संगत की सेवा इस तरह जिस तरह असीं सोडा साबण कपड़े नूं लगा के कपड़े की मैल लाउंदे हैं, सफाई करते हैं, तो नाम जिहड़ा जपना है वो रंग चाढ़ना। जिस तरह रंग रेज जिहड़ा पहला कपड़े नूं साफ कर लैंदा है और उसदे बाद उहनूं रंग चाढ़ दिंदा। जदों साडा कपड़ा साफ होया, खुद रंग अपने आप ही रंग आ जाना है, उस मालिक ने दे देना है। इस वास्ते गुरु साहब जी पहली तुक विच ही फैसला कर रहे हैं कि ऐस युग का धर्म पढ़ो पाई, पूरे सतगुर सोझी पाई। ये सानू सोझी कित्थों आई है? ये पूरे सतगुर ने दसी है, जिन्होंने उस ताकत नूं हासिल किया है। गुरु अंगद देव जी गुरु नानक देव के पास रहे हैं बहुत चिर, सारी जिंदगी गुजारी। उन्होंने इन्ना विश्वास ते इन्ना प्यार गुरु साहब के नाल सी कि जो भी काम दसदे सी सो करते सी, उन्हें कभी ना नहीं की। एक बार पो माघ दियां रातां सन ते घर विच ये गल चलती आउंदी सी कि ताकत जिहड़ी है घर विच रहे, पर यह ताकत जिहड़ी है ये कोई बैंक के पैसे नहीं जिहड़े किसी ने ना करा देने, कोई जमीन नहीं जिहड़ी ना करा देनी है। एक शक्ति नूं, गोल शक्ति नूं किहड़ा कब्जे कर सकता, किहड़ा लिफ्ट कर सकता? उसकी एक कमाई का मजबून है, ये कमाई की जरूरत है। जिसका ना नहीं, जिसका कोई सबूत नहीं, उसकी लिखत पढ़त की है? गुरु साहब के घर में चलती आउंदी सी कि ताकत घर में रहे, तो गुरु नानक देव जी महाराज ट्राई नाल ही ट्राई भी करते रहते सी। एक बार पो माघ दियां रातां सन, गुरु साहब ने दोनों साहिबजादियां नूं बुलाया, कहा कि मेरे कपड़े साफ करके लियाओ ते नाल सुका के लियाओ, रावी के कंढे चले जाओ। कहन लगे इहो जी इष्ट सानू दसिया ना करो, असीं किते सवेरे धोबी कोलों धुआ लवांगे। भाई लैना कोल बैठा सी जिसका गुरु अंगद देव जी ना पिया बाहर च, उधर नज़र की गुरु साहब ने, उन्हें कुछ नहीं सोचा, कपड़े लैके चला गए। जब शहर के बाहर गए तो हाड़ जेठ की धुप, जाके कपड़े साफ किए, सुकाए, लैके आ रहे सन। जदों शहर में आए फिर रात, गुरु साहब जी सोच गए कि कोई कारण है, ये जमैश का बकत है,
आके इस तरह दरवाज़ा टकोरिया तो गुरु साहब ने अंदरों आवाज़ दी कि तू कौन है? बोलिया नहीं। जे कोई साढ़े वर्गा अवल तो जाना ही नहीं, साढ़े वर्गा होंदा सेवादार कहंदा हुण कौन असी, तुसी हुणे सानू भेजिया, हुण कौन असी? पर बोलिया नहीं। अंदर वराग सी, प्यार सी अंदर, ते सोची पै गया कि मैं की दसां वे मैं कौन हाँ। जदों अंदर प्यार होवे हर चीज़ बदल जाती है, अंदरों जबान बदल जाती है, सोच बदल जाती है। जदों प्यार ना होवे कोई चीज़ बदलती नहीं। फिर इदा दरवाज़ा टकोरिया तो गुरु साहब ने फिर आवाज़ दी कि तू कौन है? बोलिया फिर भी नहीं। फिर गुरु साहब ने आप उठ के दरवाज़ा खोलिया तो कहन लगे असी तेनों आवाज़ा मारदे, तू बोलदा नहीं सी। रो पिया, अंदर प्यार सी। कहंदा सच्चे पातशाह मैनू नहीं सी पता कि मैं कौन हाँ। ये मेरा पता तुहानू है कि मैं कौन हाँ, मैनू नहीं सी पता कि मैं कौन हाँ। तुसीं जो कुछ पुछदे मैं उसका जवाब दे नहीं सकता। तुसीं पुछदे कि तू कौन है तो मैं की दसदा मैं कौन हाँ, मैनू तो पता ही नहीं। मेरा पता तुहानू है कि मैं कौन हाँ। उस वक्त गुरु साहब ने गल ना ला लिया, भाई लैणिया तू साढ़े पासों कुछ लैना है, असी तेरा कुछ देना है। उस दौलत नूं हासिल करने वास्ते जिसनों बाणी जी दसिया कर्म होवे, कर्म होवे तां पाइए, कर्म होवे। जे जदों बंदा कर्म करेगा, जमीन बाहेगा तो फसल होएगा। नौकरी करेगा पैसे मिलणगे, दुकानदारी करेगा उहदे चों उहनूं प्रॉफिट मिलेगी। असी पहला कर्म करांगे मुरशद के कहने मुताबक। वो की कर्म दसदे है? साध संगत की सेवा, भजन सिमरन और सत्संग। एक दिन असी उस ताकत नूं पा सकते हैं। एक दिन सानू जरूर ताकत मिल जाएगी। वो भाई लैणा गुरु गद्दी भी दे दी और साध संगत की उन्होंने सेवा भी बख्श दी। उस दे बारे महाराज तीसरी पातशाही फरमा। उन्होंने कोल जद गुरु साहब जी आए, उन्होंने उन्होंने सिक्ख्या दी, उन्होंने तरीका दसिया कि इस तरह नाम जपना है। ये गल्लां बातां दा मजमून नहीं है। इत्थे कर्म कांड दी, इत्थे कर्म करना जिहड़ा सच्चा करना है, जिहड़ा नाश ना होवे। कर्म कांडां दे विचों सानूं मिल सकदा है, लेकिन जन्म मिल सकदे है। जे असी कहिए कि साडी मुक्ति हो जाए तो मुक्ति नहीं। सारे संतां ने दुआइयां दित्तियां ने कि कर्म चों सानूं असी कर्म करांगे, कोई साडा जन्म अगे 84 विच और किसी पशु का आ जाएगा, साड़ी सानूं चंगी खुराक मिलेगी, सेवा चंगी होएगी। किसी होर कुत्ते बिल्ले का आ जाएगा, किसी होर चीज़ का आ जाए जन्म, सानूं फायदा। किसी दरख्तां के जन्मां 'च ही फर्क है। दरख्तां के जन्म देखो, बाग लगे होंदे है, बंदे उन्हां दे नौकर है। हाँ जी, बंदे उन्हां दी नौकरी कर रहे हैं, उन्हां दी देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हां भी कर्म किया। कर्म किया तां बागी बूटे बने और उन्होंने मिठे फल लगे है। उन्हां दी हर वक्त उन्हां दी उहदी संभाल हो रही है, उन्हां दी खुराकां मिल रही ने। कई ऐसे दरख्त ने जिन्हें कर्म माड़े किए, उन्हां दी कोई खुराक नहीं मिलती, उन्होंने कोई खुराक ही नहीं मिलती, कोई फल नहीं, कोई कुछ नहीं उन्हों का। ये कर्मां दे लिहाज नाल सानू जन्म मिल सकते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं होती। मुक्ति वास्ते संत कहते हैं, मुक्ति वास्ते नाम की जरूरत है। नाम की जरूरत है, सत्संग की सेवा की जरूरत है, सत्संग की जरूरत। सत्संग दे विच कई भाव साडे दिल के ख्याल जिहड़े वो खत्म हो जाते हैं। सत्संग दे विच आके हजूर फरमाउंदे हुंदे सी कि जिस तरह किसी इंसान कोई भी बंदा किसी दाने की बोरी नूं खिलार देंदा है, मुड़ के वो दाना दाना चुक के बोरी नहीं भरी जाती। इस तरह हर बंदे दे जिहड़े कर्म ने
ਉਹ ਕਰਮ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਨਾ ਕਰੇਗਾ तो फिर वो कर्म खिलर जाते। वो नहीं दाने की बोरी जिदा नहीं बन सकती, इदा कर्म भी इकट्ठे नहीं हो सकते। ये भी हजूर कई बार फरमाउंदे होंदे बड़े उच्चे कर्म होण जीव दे ते सतसंग विच आ सकता है, नहीं तो नहीं। सतसंग दे विच भी आना बड़ा कर्मां दा काम है। क्यों कि उसनूं अच्छी मत, अच्छी सिक्ख्या, अच्छा टाइम उसका जितना भी बैठेगा वो टाइम भगवान दे घर लिखा जाएगा और उस मालिक दे घर लिखा जाएगा, उहदा सानूं फायदा मिलेगा। असी जिस पासे भी जाने साडा टाइम लिखत विच आ रहा है, किसी पासे भी जाइए, जिधर मर्जी जाइए, वो टाइम साडा लिखा जाता। साडे अंदर चित्रगुप्त दो बैठे हैं, सज्जे पासे खब्बे पासे बैठे हैं, जिहड़े हर वक्त साडे कामां नूं लिख रहे हैं। यही साडा अगे धर्मराज दे हिसाब होना जाके। जिसने अच्छा कर्म किया वो भी लिखा जाता है, उसका अच्छा फायदा मिलता है। जो गुरु साहब जी बाणी जी फरमा रहे हैं कि सब तो अच्छा कर्म साडा बकर दा, बकर के मुताबिक काम करिए तो उसका सानू फायदा मिलता है। इस तरह भावें सारी जिंदगी लगा दईए, सानू फायदा नहीं मिलेगा, साड़ी मुक्ति नहीं होएगी, सानू 84 भी जाके दुख पाना पैणगे। हाँ जी। इस जग का धर्म पढ़ो तुम पाई, पूरे गुर सब सोजी पाई, पूरे गुर सब सोजी पाई, ऐत अगे हर नाम सखाई। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, पूरे सतगुर ने ये सोझी भाई समझाया कि भाई इत्थे भी और अगे भी तेरा नाम ही सहाई है, नाम ही तेरी मदद करने वाला है, वो ही तैनू सुख देने वाला, और कोई चीज़ तैनू सुख नहीं देगी। एक दस्या जिन्होंने सुख लिया नाम दे विचों, उन्होंने समझाया है कि भाई तैनू सुख मिलेगा तो नाम दे विचों मिलेगा। ऐथे भी तेरी मदद नाम करेगा और दरगाह विच भी मदद नाम करेगा। हाँ जी। पूरे गुर सब सोजी पाई, ऐते अगे हर नाम सखाई। राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी मैल उतार। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, सिर्फ राम राम करन दे नाल कोई फायदा नहीं। डॉक्टर सानू दवाई देंदा है ते नाल परहेज भी दसदा है। किसी ने भी कोई बीमारी लगी है, वो डॉक्टर दे पासों दवाई लैन जांदा, नाल डॉक्टर परहेज भी दसदा है कि अगर आ परहेज तुसीं रखोगे तो फिर तुहानू दवाई का फायदा होएगा, जे ना परहेज रखोगे फिर दवाई का कोई फायदा नहीं। सिर्फ राम राम करन नाल फायदा नहीं, ये भी असी देखना है कि राम राम दे करन नाल सानू राम आया भी है या नहीं। सानू राम भी आया, साढ़े अंदर जिहड़ियां शक्तियां सानू दुख देण वालियां, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार,
मन माया हुमे ममता रजो तमो सतो गुण आशा तृष्णा भुख प्यास नींद, ये सारियां सानू दुख दे रही, सारियां ताकतां सानू दुख दे रही। राम राम करन नाल असीं सोचते रहना, नाल नाल सोचना ट्राई करनी है ना जी, ये साडा कुछ घटिया, साडे जो क्रोध घटिया है, मान घटिया है, काम घटिया है, लोभ घटिया, कि कोई फर्क पिया, कोई रुपये जो आना दो आने फर्क पिया या नहीं पिया। अगर साडा वातावरण उस तरह का ही है, उस तरह की असी चाल चलते रहने, उही काम असी करते रहने दुनिया दे, ते फिर राम राम करन दा फायदा ही कोई नहीं होया। राम पढ़ो मन करो विचार, कि राम राम ते करो नाल विचार भी करो, नाल विचार भी करो कि कोई फर्क पिया साड़ी बीमारी का, ते जे फर्क नहीं पिया तो फिर यदा मतलब है कि राम भी असी गलत किया, राम सही नहीं किया। ऐरन दी चोरी सूई दा दान, राम राम भी करते रहे, ऐरन दी चोरी कर ली, सूई दा दान कर लिया, लोगों को दसन वास्ते, लोगों को दसन वास्ते कह दिता असी दानी बड़े हैं जी, बहुत दान किया जी, असी जग मोशा किया जी, लेकिन जिहड़ा फर्क पैना वो नहीं पिया, जिहड़ा फर्क पैना चाहिए सी वो नहीं पिया। फर्क पैना चाहिए अंदर साडे। स्वामी जी महाराज जिस तरह फरमाउंदे है, सबको सुख पहुँचा तेरे भले को कहो। सारिਆਂ ਨੂੰ सुख पहुँचाने वाली केड़ी ताकत है? क्या किसी को कोई रोटियां खुआ के नहीं पहुँचा सकता, पैसे दे के सुख नहीं दे सकता, और किसी कम नाल कोई सुख नहीं मिल सकता। फिर उन्हें की फरमाया दूसरी तुक में, सबको सुख पहुँचा तेरे भले को कहो, सबको मिठा बोल तेरे भले को कहो। तू सारिਆਂ ਨੂੰ मिठा बोल, प्यार कर सारे नाल। ये मिठा तद ही बोलेगा जे ये अंदर मिठा आएगा तद। जे मिठा अंदर आउंदा